اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو ساتھ دیجیے، ہمارا قدم مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارا رات میں 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ تو آج کا عنوان وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج کا عنوان ہے کہ بچا لو اس دیش کو، اس پیارے دیش کو ظلم سے، ظالموں سے، قاتلوں سے، موب لنچنگ سے، نفرت سے، دنگوں سے کیسے بچانا ہے اور اس دیش کی ہمیں حفاظت کیوں کرنی ہے اور اس دیش کو وکاس پر کیسے لے جانا ہے۔ بہت اہم بات آج رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان کی شکل میں ہوگی۔ آپ تمام حضرات آج رات کے 9 بجے کے اس بیان کو ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آئندہ کل 102 سیٹوں پر پولنگ سے لوک سبھا الیکشن کا آغاز ہوگا۔ پہلے مرحلے میں مہاراشٹر کی 5 سیٹوں پر بھی پولنگ ہوگی۔ تمل ناڈو کی تمام 39 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 21 اسٹیٹس، 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں گزشتہ آئندہ کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے۔ لوک سبھا الیکشن 2024 پہلے مرحلے کے تحت 19 اپریل کو 21 ریاستوں اور مرکز کے کیندر سرکار کے زیر انتظام خطوں کے 102 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نتائج کا اعلان 1، 7، 4 جون کو کیا جائے گا۔ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر سبھی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران ریلیوں اور روڈ شو میں مصروف ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کا بڑا برا حال ہو چکا ہے اور الگ الگ جگہوں سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگ بی جے پی والوں کو محلوں میں، گلیوں میں پرچار کے لیے گھسنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ راجستھان کی ویڈیو تو کافی وائرل ہو رہی ہے کہ راجستھان میں لوگ مودی حکومت کے کارنامے سننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ سب کو معلوم ہو گئے کہ پورا جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ راجستھان کے مکھیہ منتری کے جلسے سے لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما
जैसे ही पीएम मोदी की कारगुजारियां, पीएम मोदी के कारनामे शुमार करना शुरू करते हैं, लोग जलसे से उठकर जाने लगते हैं। ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। न्यूज़ पोर्टल एबीपी के मुताबिक राजस्थान के वजीर आला को उस वक्त अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब लोग उनके इंतखाबी रैली छोड़कर जाने लगे। लोगों को रोकने के लिए स्टेज पर बैठे लीडरान उन्हें हिंदू होने और महादेव के भक्त होने तक का वास्ता देने लगे, यानी देव का वास्ता, महादेव का वास्ता देकर लोगों को बिठाने लगे, मगर लोग बैठने को तैयार नहीं। यानी मोदी हुकूमत की कारगुजारियां लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को मालूम है सब फेकम फाक है, झूठ है, सत्यानाश कर दिया मुल्क का। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मॉब लिंचिंग मामला को लेकर। आप जानते हैं कि दाढ़ी टोपी देखकर, मुसलमान देखकर या मुसलमान नाम पूछकर जिस तरीके से भगवा आतंकवादियों ने मुल्क में आतंक का नंगा नाच खेला और कई मुसलमान जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में, ये मामले कब ज्यादा बढ़े हैं? 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई, ये मामले ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि भगवा आतंकवादियों को खुलकर ये महसूस होने लगा था कि हमारे बाप की हुकूमत है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आखिर खबर आ रही है कि अब मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों से, तमाम रियासतों से 6 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब मांगा है। गुज़िश्ता कल मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर मुबैना तौर पर गौरक्षक आतंकवादियों और भीड़ के जरिए पीट पीट कर कत्ल किए जाने के मामला में की गई कार्रवाइयों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दें कि इन भगवा आतंकवादियों और ये गौरक्षा के नाम पर आतंकवादियों ने जितने भी कत्ल और मर्डर किए हैं मॉब लिंचिंग की शक्ल में, इन पर क्या कार्रवाइयां की गई है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के अंदर अंदर मुख्तलिफ रियासतों से जवाब मांगा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, राहुल गांधी जो बिल्कुल अब डायरेक्ट आक्रामक अंदाज में नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से गुज़िश्ता कल कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बदउनवानी के चैंपियन हैं, करप्शन के चैंपियन हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब बीजेपी 400 पार नहीं 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें बदउनवानी का, करप्शन का चैंपियन करार दिया है। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बुध को समाजवादी पार्टी एसपी सरबराह अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सियासत में शफाफियत के लिए लाया गया। अगर यह सच होता तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल क्यों खड़े किए? जिन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया उनका नाम क्यों छुपाया गया? उन कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर वो कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। इसे सीधी जबान में जबरदस्ती वसूली कहा जा सकता है। हकीकत में इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घपला है, करप्शन है, और वजीर आजम इस करप्शन के चैंपियन हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन है ये सीधा सीधा नजरियात का इलेक्शन है, विचारों की लड़ाई है। आरएसएस और बीजेपी जमहूरियत और आइन, सेकुलरिज्म और संविधान दोनों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इंडिया इत्तेहाद उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क में इस वक्त महंगाई और बेरोजगार के खास मसले हैं, लेकिन वजीर आजम इन पर बात नहीं करना चाहते। गांधी ने दावा किया कि पूरे मुल्क में इंडिया अलायंस को भरपूर हिमायत मिल रही है, जिसे देखकर लगता है कि बीजेपी इस इलेक्शन में 150 सीटों पर सिमट जाएगी। बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जिया, महाराष्ट्र में भी महायुति की हवा निकली हुई है और महायुति काफी परेशान है महाविकास आघाड़ी की तरफ लोगों को बढ़ता हुआ देखकर। अभी खबर आ रही है उमरेड से। जी हाँ, यानी कितना बुरा हाल हो गया है महायुति का। एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार और बीजेपी का इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता कल चिलचिलाती कड़क धूप में बाइक रैली के जरिए वजीर आला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रचार किया। एकनाथ शिंदे ने रामटेक के महायुति उम्मीदवार राजू पर्वे की इंतखाबी मुहिम में
बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस इंतखाबी रैली में वजीर आला ने खुद मोटरसाइकिल चलाई और राय दहिंदों से राजू परवे की जीत की अपील की। इस बाइक रैली ने उम्ब्रेड में महायुति कारकुनों में बेदारी पैदा की, लेकिन आम जनता में बेदारी पैदा करने में नाकाम रही। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत गुजरात से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने भेजी है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि गुजरात के नाडियाड में बुध के दिन यानी गुज़िश्ता कल एक बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर एक साथ 10 जिंदगियां खत्म हो गई। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर नाडियाड के करीब एक कार ने पीछे से ट्रेलर को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कार में सवार सभी के सभी 10 अफराद की मौत हो गई। मकामी पुलिस का कहना है कि कार में सवार सभी 10 अफराद की मौत हुई है। 8 अफराद ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 2 अफराद की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के तमाम बड़े उलमा उम्मत को वोट डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी आप समझिए कि कोई तो खास बात है इस इलेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्शन इतना खतरनाक इलेक्शन है कि बीजेपी ने जिस तरीके से घटिया अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाया है, उसमें हम तमाम को यह समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है तो हो सकता है आइंदा इलेक्शन भी खत्म हो जाए। राहुल गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को और सेकुलरिज्म को दोनों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी बड़ी खबर आ रही है कि मुफस्सिर कुरान और मशहूर मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में अपनी हक राय दही इस्तेमाल कीजिए, यानी वोट दीजिए और जमहूरियत की हिफाजत में अहम किरदार अदा कीजिए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन आम इलेक्शन की तरह नहीं है, बल्कि ये मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला इलेक्शन है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं तमाम हम वतनों से अपील करता हूँ कि आपका हर वोट बहुत कीमती है और इसका असर बहुत दूर तक पड़ेगा, इसलिए आप सब अपना कीमती वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मोहल्ले के जिम्मेदार लोग छोटे छोटे ग्रुप बना ले और इस बात को यकीनी बनाए कि हर 18 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स वोट डालने जाएं। उसके लिए हर घर में जाकर वोटिंग के बारे में बेदारी पैदा करने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि आप लोग वोट की अहमियत को समझें, ये मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं और वो जो खड़े हैं वो सब के सब तकरीबन डमी हैं, उनको हार या जीत से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। और आपको मालूम होगा कि वोट काटने के लिए सत्ताधारी पार्टियां कई उम्मीदवारों को पैसे देकर खड़ा भी कर रही है। इसलिए मौलाना ने कहा कि अपने कीमती वोटों को तकसीम न होने दें। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चंद पैसे लेकर वोट काटने का काम करते हैं, इसलिए मुसलमान एहतियात से होशियारी से काम ले, आपका वोट कटने न पाए, तकसीम न होने पाए। और साफ इशारा मौलाना ने कर दिया कि नफरत फैलाने और मुआशरे को तकसीम करने वाली पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को अपने वोट की ताकत से रोकें। हर कोई जानता है कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, चाहे आप उसे जाती तौर पर पसंद न करें। हमें और आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त जलगांव शहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गुज़िश्ता कल इसी वक्त में जलगांव की एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगी। हमारे शहर की एक केमिकल फैक्ट्री में, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 20 मजदूर जख्मी हुए हैं। 5 की हालत उनमें भी नाजुक बताई जा रही है।
सुबह 9 बजे MIDC के D सेक्टर में मोरिया केमिकल कंपनी में जबरदस्त आग लगी, जिसमें एक मजदूर के हलाक होने की और 20 के जख्मी होने की खबरें आ रही है। जख्मियों में से कुछ को प्राइवेट अस्पतालों और दीगर को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक मज़ीद मालूमात ये है कि जलगांव शहर के MIDC सेक्टर में मोरिया केमिकल कंपनी में बुध की सुबह यानी 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे भयानक आग लगी। आग लगने की वजह के बारे में अभी तक मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं हुई है। नाज़रीन, अदाकार सलमान खान फायरिंग केस मामले में जो उनके घर पर फायरिंग का वाकया, उस मामले में दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर आ रही है कि अदाकार सलमान खान के पनवेल में वाक़े फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। शूटर 28 फरवरी को मुंबई आए थे। उन्होंने 10,000 डिपॉजिट और 3,500 रुपये माहाना किराए पर एक फ्लैट लिया था। 2 अप्रैल को सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी उन्होंने खरीदी। क्राइम ब्रांच ने उन्हें रिवाल्वर देने और कार फराहम करने वाले की भी जानकारी अभी फिलहाल खुफिया रखी है। और खबर यह भी आ रही है दूसरी कि सलमान खान इस फायरिंग केस में गवाह बनने के लिए तैयार है। मुंबई क्राइम ब्रांच को इतवार के दिन अदाकार सलमान खान अपना बयान दर्ज कराएंगे। पुलिस एहलकार बता रहे हैं कि जब सलमान खान के घर पर हम पहुंचे फायरिंग के बाद तो वो बहुत गुस्से में थे और अपने खानदान की हिफाजत के लिए परेशान थे। बॉलीवुड स्टार ने मुंबई पुलिस की जानिब से दी हुई सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों की भारी तैनाती के बावजूद ऐसा वाकया पेश आया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर के मराठा रिजर्वेशन पर कोई पाबंदी नहीं और इस मामले में अब अगली आखिरी समाअत 13 जून को होगी। SEBC जुमरे के तहत PIL नंबर 3468 और 2024 मराठा रिजर्वेशन के मामले में यह खबर सामने आई है कि अभी उस पर कोई पाबंदी नहीं है और इस मामले को लेकर 13 जून को अगली आखिरी समाअत होगी। 13 जून तक मुलतवी करते हुए रिजर्वेशन पर फौरी पाबंदी लगाने के दरखास्त गुजारों के मुतालबे को कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन बेंच ने बुनियादी तौर पर वाज़ेह किया कि रिजर्वेशन के तहत सरकारी मुलाजमतों में तालीमी दाखिले और तकर्रुरात हतमी फैसले के ताबे होंगे। आमतौर पर अगर कोई कानून या मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है तो उसका फैसला उस मामले में हतमी फाइनल आखिरी फैसले से मशरूत होता है। इस कायदे के तहत अदालत ने इस केस का जिक्र किया है।